અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ ચારિણી પ્રામાણી છે. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવી તે વ્યર્થ આપવાથી નિજમાં માપાઈ મેં માની છે. અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીણેશ્વર તણીમાં જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુ રાજ તણી જાણી તેણે જાણી છે. તત્વ વિચારણામાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 569. કાલે જે વિષય હતો એમાં કોઈકનો પ્રશ્ન હતો કે થોડુંક વધારે સ્પષ્ટીકરણ કરો. વાત્સલ્ય અને સ્નેહ, થોડી બધી વાત પચી નહીં, પાચન થવું જરા અઘરું છે. તો પ્રમાદમાં જેને સ્નેહ કીધો છે, કોઈ પણ પદાર્થ પ્રત્યે રતિ રાગ, જડ અથવા ચેતન પદાર્થ પ્રત્યે રતિ અથવા રાગ કરવો એનું નામ સ્નેહ છે. એ એક પ્રકારથી આત્મામાં કષાયની ચિકાસ હોય છે. શું હોય છે? કષાયની ચિકાસ, ચિક્કણ. કષાયની બે પ્રકારથી હોય ચિકાસ, એટલે એક ચિકાસ રૂપ હોય, એક વૃક્ષતા રૂપ હોય છે. બીજા પ્રત્યેનો જે લગાવ છે, પરદ્રવ્ય પ્રત્યેનો લગાવ, એ રાગરૂપ ચિકાસ છે. અને બીજા પ્રત્યેનો અલગાવ છે, ગમતું નથી, એ દ્વેષરૂપ છે. તો સ્નેહમાં પરદ્રવ્ય ગમે છે. એ જે ગમે છે એ કશાય છે. અને એ ગમાપણો જે છે એના કારણથી આત્માની વિરાધના થાય છે. શું થાય છે? આત્માની વિરાધના થાય. તમારો ઉપયોગ કોઈ પણ જગ્યાએ, બીજી જગ્યાએ જાય સ્નેહથી, અનુરાગ ભાવ છે, અને એનાથી આત્મા પોતાના સ્વભાવથી બહાર આવે છે, તો જ તમે સ્નેહ કરી શકો. વાત્સલ્ય પણ એની જે છે ને એ એક પ્રકારની ફોર્મ છે, અવસ્થા છે. એમાં આપણે સારી વસ્તુઓ સાથે પ્રેમ કરવો તો સારામાં ઉપયોગ રહે, પણ ઉપયોગ બહાર આવે જ ખરો. અને ઉપયોગનો આત્માથી બહાર આવવો એનું જ નામ વિભાવ કહેવાય છે, એનું જ નામ વિકાર કહેવાય છે. એ વિકાર છે. વાત્સલ્ય અને સ્નેહ બંનેમાં
કોઈ અંતર નથી, જરાય અંતર નથી. માત્ર અંતર એટલો છે કે હા ઓમ નાની પુસ્તિકા છે શ્રી સમયસ્થાનનો સાર, કામદારબેન લખેલું. એટલે વાત્સલ્યનો જે નિશ્ચય અર્થ બતાવ્યો છે અને એમાં વાંચું છું. વાત્સલ્ય ગુણ જે આત્મા મોક્ષ માર્ગમાં રહેલા સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર્યરૂપી 3 સાધનો પ્રત્યે અથવા વ્યવહારે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, મુનિ એ 3 સાધુઓ પ્રત્યે વાત્સલ્ય કરે છે તે વાત્સલ્ય ભાવયુક્ત સમદ્રષ્ટિ જાણવું. એ તો કાલે આપણે ચર્ચા થઈ. તો આચાર્ય, ઉપાધિ इत्यादि प्रति व्यवहार है. क्या शब्द लिखा वहां पर? व्यवहार का मतलब पर द्रव्याश्रित. सारा वास्तव में तो अपने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से जो स्नेह करता है वही वात्सल्य अंग. सम्यक दर्शन ज्ञान अपना सम्यक्त्व से, अपने ज्ञान से और अपने चारित्र से, मतलब आत्मा से. वही तो कल बात हुई. 1000 શાસ્ત્ર તમે કાઢો પણ વાત એક જ મળશે. વ્યવહાર તે વ્યવહાર અને નિશ્ચય તે નિશ્ચય. અને જ્યાં પરની અપેક્ષા હોય છે એ હંમેશા દુઃખરૂપ હોય છે. એ સ્વભાવ નથી. એ સ્વભાવની સાથે હોય એટલે એને ઉપચારથી એવો કહેવાય છે. બાકી તો સમય સાર પ્રવચન સારના 82 નંબરની ગાથામાં મોહના 3 લક્ષણ કીધા છે. એમાં મનુષ્ય અને તિર્યંચો સાથે પ્રેમ એને મોહનું લક્ષણ કીધું છે. મોહનું લક્ષણ છે. ગાથા નંબર મને યાદ નથી. હા, ગાથા નંબર 85 પ્રવચન સાર. જોરદાર વાત લખી છે. મોહસ્ય લિંગ, મોહના લિંગ, મોહના લક્ષણ કીધા છે એમાં. અઠ્ઠે અજધા ગહણમ કરુણા ભાવોય તિર્ય મણુયેસુ વિષયેસુ યપ્પસંગો મોહસ્યેદાણી લિંગાણી. અર્થે અયથાર્થ ગ્રહણમ કરુણા ભાવશ્ચ તિર્યગ મનુજેષુ વિષયેષુ ચ પ્રસંગો મોહસ્યેતાની લિંગાની. અર્થ એટલે અર્થે અયથા ગ્રહણમ એટલે પદાર્થોનું અયથા ગ્રહણ, અર્થાત પદાર્થોને જેમ છે તેમ સત્ય સ્વરૂપે ન માનતા તેમના વિશે અન્યથા સમજણ. અને તિર્યંચ મનુષ્યો પ્રત્યે કરુણાભાવ. તિર્યંચ અને મનુષ્યો પ્રત્યે કરુણાભાવ અને વિશેષ પ્રસંગ અને વિષયોનો સંગ એતાની મોહસ્ય લિંગાની. આ મોહના લિંગો છે. મનુષ્ય અને તિર્યંચો સાથે જે કરુણાભાવ છે એ પણ શું છે? મોહનું લક્ષણ છે. રાગ વગર થાય નહીં. એ ગાથામાં તો જોરદાર લખ્યું છે. પદાર્થોની અયથા તથ્યપણે પ્રતિપત્તિ વડે અને તિર્યંચ મનુષ્યો પ્રેક્ષા યોગ્ય હોવા છતાં પણ તેમના પ્રત્યે કારુણ્ય બુદ્ધિ વડે મોહને ઓળખીને, ઇષ્ટ વિષયોની આસક્તિ વડે રાગને ઓળખીને અને અનિષ્ટ વિષયોને અપ્રીતિ વડે દ્વેષને ઓળખીને એમ 3 લિંગો વડે 3 પ્રકારના મોહને ઓળખીને એકદમ ઉપજતા વેત જ 3 પ્રકારનો મોહ હણી નાખવા યોગ્ય છે. तीनों प्रकार के मोह नष्ट करने योग्य हैं. कौन कौन से? एक तो पदार्थों में जो अयथा ग्रहण है वो,
दूसरा मनुष्य और तिर्यंचों के साथ जो करुणा भाव है वो, और तीसरा विषयों में प्रवृत्ति है वो। ये तीनों प्रकार के मोह है, उसको नष्ट कर देना चाहिए। કેવું કીધું છે ખબર છે? तिर्यंच मनुष्य प्रेक्षा योग्य होवा छता वो मात्र ज्ञान के ज्ञेय हैं, वो न राग करने योग्य हैं और न ही द्वेष करने योग्य। केवली भगवान ऐसे हैं। ये तो भूमिका के अनुसार जो होता है वो होता है तो उसको स्वीकार है, परंतु ये हमारा अंतिम स्टेज नहीं, ऐसा समझो। ये सिद्धांत है। सिद्धांत बराबर पकड़ में नहीं आता है तो हम अपनी दशा से ऊपर की दशा के बारे में सोच नहीं पाते। हमको जो फील होता है ना, उसी को हम सत्य मान बैठते हैं। अब हम जिस दशा में हैं उस दशा में हमको वात्सल्य भाव है वो फील होता है और उससे हमको अच्छा लगता है। कोई हमको प्रेम करता है वो भी अच्छा लगता है, और हम किसी से प्रेम करते हैं वो भी हमको अच्छा लगता है। तो हम उससे आगे नहीं उठ पाते कि उससे भी ऊपर एक दशा है जहाँ ये भाव नहीं है किसी भी प्रकार के। उस वितराग दशा का अपने को श्रद्धा नहीं हो पाता इससे। अपन के આપણે થોડાક લોકો સાથે પ્રેમ કરીએ છીએ, પણ ભગવાન છે ને આખા વિશ્વ સાથે કરે છે। हम ऐसे तुलना करते हैं भगवान की कि हमारे अंदर जो थोड़ी मात्रा में है वो भगवान में बड़ी मात्रा में, अथवा मोक्ष की भी ऐसी धारणा करते हैं अपन कि हमको जो थोड़ा जो सुख मिलता है उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में होगा, पर हमको तो इंद्रिय सुख मिलता है वो जाति अलग है, उस प्रकार का वो नहीं है। इसलिए बराबर सिद्धांत, वो जो वितरागता का सुख है वो एक अलग प्रकार का सुख है। ये इसमें ये सब न राग है, न द्वेष है, न शोक है, न भय है, न जुगुप्सा है, न रति है, न अरति है, न कुछ भी नहीं है वहाँ पर। ऐसा जो आत्मिक सुख है उस सुख की श्रद्धा करनी चाहिए। अपने प्रेम, वात्सल्य और स्नेह, ये तीन की बात हुई अपनी, और तीनों व्यवहार वो तो समझ में आता है, लेकिन उनकी अलग अलग कक्षा है। तो ये 6-8 अंग है समगीत के। 6 ढाला में उसकी चर्चा की है कि धर्मी सौ गौ वच्छ प्रीति सम कर जिन धर्म दीपावे। हाँ बराबर। तो वो वात्सल्य हुआ ना। कैसी प्रीति होती है? गाय और बछड़े के जैसी होती है, वो होती है। और किससे होती पता है? केवल धर्मियों से, बाकी से नहीं होती है। उसमें क्या क्या लेना धर्मियों में? साधर्मी जो भी इस मार्ग पे चलते हैं उस मार्ग पे चलने वालों के प्रति इतनी प्रीति होती है, बाकी संसारी लोगों के प्रति नहीं होती। वो तो सही बात है, क्योंकि वो प्रेम जो प्राणी और तिर्यंच की बात की वो तो हाँ ठीक है। और वो प्रीति वो सहज प्रीति है कि जो अपने साथ चलते हैं उसके साथ प्रेम हो ही जाता, पर वो छठे गुण स्थान तक बुद्धिपूर्वक रहता है, इसके आगे रहता नहीं है। फिर वो वितरागता में सम्यक दृष्टि को जरूरत होगी ना, जरूरत है ना, ऐसा नहीं है। देखो ये चीज समझो, होना समझो और जरूरत समझो। ये होता है वह अनिवार्य है। हाँ होता है। आप उसको नहीं चाहोगे तो भी होगा, क्योंकि जब वो दशा प्रकट हुई है ना तो अब नहीं चाहेंगे। अब कोई यूँ कहे कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, પણ છે ને મને છે ને આમ સાધુઓ ગમતા નથી, ગુરુ ગમતા નથી, ભગવાને ગમતો ના, મને તો ખાલી આત્મા જ ગમે છે। તો आप उस गुण स्थान में नहीं हो, क्योंकि जब उस गुण स्थान में होते हैं तो वो अच्छे लगते ही हैं। आप ये साथ ही है ऐसा अनिवार्य, जिसको कहते हैं अनिवार्य रूप से सम्यक दृष्टि को देव शास्त्र गुरु अच्छे लगते ही है, उनकी भक्ति होती ही है। वो आगे की भूमिका बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है, पर जब तक उस भूमिका में तब तक उसके विकल्प रहेंगे, वो नहीं जाएंगे आपको उस गुण स्थान में। इतना वो भक्ति का भाव, करुणा का भाव, जो भी कहते हैं उसको प्रकट होता है।
जैसे ज्ञान के साथ वैराग होता है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है ना वैसे वैसे वैराग बढ़ता है। सम्यक दृष्टि जीव में ज्ञान और वैराग दोनों शक्तियां नियम से होती है। जहाँ ज्ञान और वैराग शक्तियां नियम से होती है वहाँ दया और करुणा भी नियम से होती है। तो दया, करुणा, कोमलता ये वहाँ पर अनुराग रूप में प्रकट होते हैं। ज्ञान और वैराग्य तो आत्मिक शक्ति के रूप में प्रकट हो रहे हैं, और दया, करुणा आदि हैं वो उसके मोह के मंद होने से चारित्र मोह के रूप में हो रहे हैं। ये दया, करुणा आदि चारित्र मोह का उदय है, और वैराग्य आदि अपना जो रत्नत्रय है उसका क्षयोपशम है। वैराग्य ज्ञान ये क्षयोपशमिक भाव। वैराग्य कब पैदा होगा पता है? जब चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होगा तो वैराग्य पैदा होगा, त्याग पैदा होगा, संयम पैदा होगा। और ज्ञानावरण और दर्शनावरण और मिथ्यात्व मोहनीय का क्षयोपशम होता है, तब ये ज्ञान भाव पैदा होता है, तत्व ज्ञान आदि पैदा होते हैं। परंतु उसके साथ जो करुणा, कोमलता ये जो प्रकट होते हैं वो चारित्र मोहनीय का उस समय जो उदय होता है उससे प्रकट। इन दोनों में इतना फर्क है, एक चारित्र मोहनीय का उदय रूप कषाय रूप है और एक आत्मा के गुण रूप है, एक स्वभाव रूप है, एक विभाव रूप। इतना अंतर। नहीं, एक बात थोड़ा निष्कर्ष पे आना है इसलिए पूछ रहा हूँ थोड़ा। हाँ बात क्या है चर्चा करें कि कभी भी ये प्रश्न होता है कि अच्छा ये बात तो ठीक है कि सम्यक दृष्टि को वो सहज होता है, ये सब आठों जो अंग है वो। प्रश्न ये होता है कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक ये 8 अंग का अगर उसके प्रति हमारी रुचि न हो तो वो न हो तो फिर सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो पहले भी उसकी ज़रूरत है अमुक हद तक। हाँ देखो, जिसको भी मोक्ष मार्ग पे आना है उसको सहज रूप से अब किससे प्रीति होगी? जो मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं उसको देवशास्त्र गुरु के प्रति प्रीति होगी, क्योंकि उसको वहाँ आना है ना। उसको संसारियों के प्रति प्रीति अपने आप घट जाएगी, घर परिवार वो ठीक है, परंतु अब गुरु जी अच्छे लगते हैं, सत्संग अच्छा लगता है, साधर्मी मित्रता बहुत प्रगाढ़ हो जाती है उनसे, उनके सुख दुख में बराबर साथ आएंगे। ये वो भी जैसे ही आपकी शुभेच्छा नाम की जो भूमिका है वो चालू हुई और सम्यक्त्व के जितने भी जो भी बाहर के अंग वगैरह वो सब वहाँ प्रकट हो जाएंगे धीमे 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 सारी चीज। इच्छा करते ही मोक्ष की और आत्मज्ञान की इच्छा करते ही आत्मज्ञान के लिए आवश्यक जो जो भी चीज़ें हैं वो सब धीमे धीमे प्रकट होती जाएगी। उस इच्छा ने ही आपको प्रकट कर दी। आदरणीय जैसे भाई साहब ने कहा दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग्य होय मुमुक्षु घट विषय ते सदा। पर जब वो स्टेज पे पहुँचते हैं पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन, तो उस टाइम आप कहते हो ना वहाँ रुक जाते, ऐसा नहीं, तब उनको मुनि की दशा क्या होती है उसका ख्याल आने लगता है। एक थोड़ा सा भी झांकी हुई नहीं, यहाँ रुक जाए ऐसा नहीं कह रहे हैं, यहाँ तो ऐसा कह रहे हैं कि रुकता जो इसको उपादेय मानता है वो रुक जाता है। जिसको जो कषाय कोई उपादेय मानता है वो तो रुक ही जाएगा ना। जिसको ज्ञान, वैराग्य, तप, त्याग ये उपादेय लगेंगे वो आगे बढ़ेगा। इसको तो प्रेम, स्नेह वो अच्छा लगता है, तो ये कैसे आगे बढ़ेगा? उसको तो संसार ही अच्छा लगा ना। प्रेम स्नेह तो उसके साथ जो सहज होता है, अपने साथ चल रहे हैं तो ठीक है, उसके मन में ऐसा रहता ही है कि ये भी चल रहा है मैं भी उसके लिए जान भी दे देगा, क्योंकि उसको जान की फिक्र नहीं है। संसारी लोग जो प्रेम वात्सल्य जो करते हैं ना, उससे सम्यक दृष्टि जीव अनेक गुना बेहतर तरीके से करते हैं। संसारी तो अपने स्वार्थ में रहेगा, अपने शरीर की चिंता करेगा, अपने पैसे की चिंता करेगा। सम्यक दृष्टि नहीं करेंगे, वो सब कुछ दे डालेगा। अगर आप इस धर्म के मार्ग पे बढ़ रहे हो, मेरा सब कुछ आपका, एक क्षण भी वो नहीं रुकेगा। उसका निस्वार्थ प्रेम होता है। उस प्रेम को समझना बहुत कठिन है, पर उसके प्रेम में आपके प्रति कहीं पर भी आसक्ति नहीं होगी। उसके प्रेम में बड़ा वैराग होता है
हमको लगता है कि અમારા પ્રત્યે આમ ખૂબ જ અંદર અમને યાદ કરતા હશે અને અમારા પ્રત્યે આમ એમને આમ લાગણીનો ઉભરો આવતો, ऐसा कुछ नहीं आता है। उनको कोई किसी के प्रति उभरा नहीं आता है, कोई किसी के प्रति लागणी होती नहीं है, एक करुणा है। ये इसके कारण से सहज वात्सल्य बना रहता है कि भाई आप इस मार्ग पे चढ़ो तो अच्छा है। वो निष्काम प्रेम अलग प्रकार का होता, ऐसे लोक में लागणियों जैसा वो होता, इसलिए वो अपने लिए रोएंगे नहीं। ज्ञानी दूसरों के लिए रोते नहीं है, उनको आसक्तियाँ नहीं है, उनका सब वैराग युक्त होता है, सहज वैरागी सारा। इसको समझना चाहिए अपने को, नहीं तो क्या है कि धर्म के मार्ग पे आकर के भी हम एक दूसरे से चिपके रहेंगे, लगे रहेंगे, और वो वैराग नहीं होगा ना तो ज्ञान प्रकट नहीं कभी। इसलिए वैराग, चिंताएं नहीं, कुछ भी हमारे साथ जो रहें, जितनी देर तक हैं उतनी देर तक हमारा सब कुछ आपका, पर अंदर से वो चिंता का कारण नहीं बनना चाहिए। वो हमारी भूमिका में बन जाता है वो अलग बात है, और वो योग्य नहीं है। बात समझ में आ रही है? हमारे साधर्मी के प्रति भी हमको अंदर से चिंता हो जाती है, वो हो जाती है, वो हमारा दोष है, वो हमारी दुर्बलता है, होनी नहीं चाहिए। हमको केवल चिंता अपने रत्नत्रय की करनी चाहिए। ये तो आर्त ध्यान है, मुनि की दशा में भी हो जाती है। उनके शिष्यों के प्रति कोई शिष्य कहीं हो वगैरह, कोई सुना इसके कि भाई इसके ऊपर कुछ उपसर्ग हुआ वगैरह ऐसा, तो थोड़ा एक विकल्प आ जाता है, पर वो वापस अपने स्वस्थान में चढ़ जाते हैं। ये कोई योग्य नहीं है, उसको अंदर से योग्य, कभी भी किसी भी दोष को योग्य मानना, उचित मानना। इसलिए तो दुनिया, ज्ञानी और जगत की दृष्टि में बहुत बड़ा अंतर है। हम किसको अच्छा मानते हैं पता है? हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई और बैठने के लिए, अलग अलग सांत्वना देने के लिए आते हैं, तो जो बहुत रोता है ना, हमारे बेटे की मृत्यु पर आकर के बहुत रोया, हमको उसके प्रति बहुत अच्छा लगेगा। अरे यार, અમારા દીકરાને એને કેટલો પ્રેમ છે, કેટલો રડે છે, કેટલો हितैषी છે, और वो मोह के कारण से कर रहा है ऐसा। और जो ऐसा दृढ़ वैरागी बना रहता है उसको, अरे यार हमारा दीकरा प्रत्ये ने कोई लागणी नहीं, જરાય प्रेम भाव छे। ये जगत की दृष्टियाँ हैं। एक हमको जो हमारी तरह होता है ना, वही हमको अच्छा लगता है, परंतु ज्ञानियों की दुनिया कोई अलग प्रकार की दुनिया है। तो सम्यक दृष्टि तो जागृत होते ही है, वो ऐसा नहीं कर, लेकिन वो जो गाथा है अपनी आलोचना की, अहो समदृष्टि आत्मा करे कुटुंब प्रतिपाल, हाँ, तो अंतर कृत न्यारो रहे जम धाव खिलावे। अपने प्रवृत्ति सब करते हैं, लेकिन वो मन से तो हाँ, मतलब क्या होता है कि जो अज्ञानी जीव होते हैं ना, उनकी दृष्टि हमेशा उनकी प्रवृत्ति पे रहती है। ओ कितना ध्यान रखे छे, परंतु वो अंदर से कितने अलग है वो नहीं देख पा रहा है, इसलिए वो मोक्ष मार्ग पे नहीं चढ़ पा रहा है। इसलिए वो यूं सोचता है कि आपणे आवुं ज करवुं जोईए। वो ग्रहण क्या करता है कि जो पेला ज्ञानी महात्मा छे એ એમના છોકરાઓનો ને પત્નીનો કેવો ध्यान राखे छे, बराबर, એટલે આપણે પણ એવું જ ध्यान રાખવું જોઈએ। वो तो पकड़ा उसने, पर उसने उसका वैराग नहीं पकड़ा है। समझ में आ रहा है? ज्ञानियों के छल ग्रहण करने में बहुत एक्सपर्ट है, क्योंकि वो तो उनको अच्छा लगता है ना, इसलिए। पर वो अपने मन को कितना मजबूत किए हुए हैं। ग्रह वास जने भाला जो, भाला पे रह सकते थे, वो किस प्रकार से करता है वो अपने को पता नहीं चलता है। उस वहां तक जाने का प्रयत्न, वो वैराग तक जाने का प्रयत्न करना चाहिए। बाहर की वस्तु में ना चाहिए।
हाँ, उनका प्रश्न ऐसा है कि ज्ञानी तो वैराग है, इसलिए कोई बहुत अधिक भावनाएं प्रदर्शित करता नहीं है, और कुछ जड़ होते हैं जिनको किसी के प्रति कुछ प्रेम स्नेह होता ही नहीं है, तो वो तो जड़ है, वो तो निगोद के पात्र हैं, वो सब निगोद में जाने वाले हैं। भावना शून्य जो हृदय शून्य होता है वो सब निगोद के पात्र होते हैं, और वैरागी होता है उसको तो अंदर से सबके प्रति हित की भावना है, और वो ज़्यादा त्याग कर देगा। जो करना पड़ेगा, जो कर्तव्य निभाने पड़ेंगे बहुत अच्छी तरह से निभाएगा वो, और रोने वाला तो रोता ही रहेगा, कुछ नहीं निभाएगा, कुछ नहीं। तो मोह में इतना आसक्त है, इसलिए जो घर में कोई ऐसे शौक वगैरह हो जाता है ना, तो घर वाले तो शौक में ही रहते हैं, बाकी सारे काम कौन करते हैं? दूसरे करते हैं। कर्तव्य कौन निभा रहा है? आस पड़ोस के निभा रहे हैं सब, उनकी वो अर्थी को सजाना हो कि ये करना वो करना, वो लोग तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो मोह में लिप्त है। अभी थोड़ी सी भी विवेक जागृति और गंभीरता आती है तो काम कर सकोगे ना आप, तो ये आप कर्तव्य का पालन कर सकोगे। इसलिए कर्तव्य का पालन करें। शोक करना तो कहीं भगवान ने मना ही किया है ये सब चीजों को। आगे चढ़ेंगे तब पता पड़ेगा कि ये सब चीजों में मैं ऐसा ऐसा करता था। ये जैसे जैसे वो शुभचंद्राचार्य ने लिखा है, नहीं गुणभद्राचार्य, हम जैसे जैसे आगे की अवस्था में, आगे की दशा में साधक पहुंचता है, वैसे वैसे पीछे की जो उसकी दशा थी, अज्ञान की दशा, उसके ऊपर उसको आश्चर्य भी होता है और हंसना भी आता है। ऐसा होता है मैं ऐसे कैसे करता। दोनों को साथ में लेकर के करना, दिल से जीना। किससे जीना? दिल से जीना, और वैराग युक्त होकर के। विवेक, वैराग्य और विनय, ये तीनों को साथ में लेकर, विनय मतलब भक्ति। तो अब तो मेरे ख्याल से इसके बारे में स्पष्ट हो गया होगा, सिद्धांत दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से, सबसे। अपनी इस भूमिका में हमको प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, इस चीज की हमको आवश्यकता है। जब तक हम हमारे अंदर इस जगत के सभी जीवों के प्रति वात्सल्य, प्रेम, स्नेह नहीं बनेगा, थोड़े लोगों के प्रति बहुत अधिक है, अभी इम्बैलेंस है, थोड़े लोगों के प्रति बहुत अधिक है, कुछ के प्रति बिल्कुल नहीं है, तो ये बैलेंस बढ़ाने का प्रयत्न करना। तो जैसे जैसे हमारे अंदर निस्पृहता, निस्वार्थता आती जाएगी, वैसे वैसे हमारा वो जो प्रेम का है ना, विस्तार होगा। प्रेम के विस्तार की आवश्यकता है। इसलिए जो धर्मात्मा, ज्ञानी, महात्मा, सन्यासी, साधु, जो बड़े लोग होते हैं, महापुरुष, उनको देखना कि जगत के सभी जीव उनको पसंद करते हैं, उनका सब जीवों के प्रति। और सन्यास भी व्यक्ति इसीलिए लेता है कि वो उसके एक घर, माँ, पिता, बहन, ये सब छोटे पड़ जाते हैं, और वो बहुत बड़ा हो गया, उसका आकार इतना हो गया है कि वो अब थोड़े से लोगों से चिपक करके नहीं रह सकता है, और वो सारी दुनिया का हो रहा है, सारे जगत का हो रहा है। वो उसकी चेतना इतनी विस्तृत हो रही है, और वो थोड़े से बन के नहीं रहेगा, सबका हो जाएगा। और इसलिए एक जगह नहीं रहेगा, एक प्रकार के लोगों के साथ नहीं रहेगा। इसलिए जब मुनि हो जाते हैं तो एक जगह नहीं रहते हैं, एक ही प्रकार के लोगों के साथ नहीं रहते हैं, वो चलते जाते हैं, और कारवा बनता जाता, कहीं रुकते नहीं है। ये एक प्रकार का ऐसे ही विज्ञान है ये सारा का सारा। इसलिए अगर हमको वास्तव में वितराग होना है तो अपने प्रेम का विस्तार कर दो। क्या करना हमको? क्योंकि जो हमारे पास है वास्तव में हमको प्रेम नष्ट करना है,
करना क्या है हमको? प्रेम को करना नष्ट है, और वो नष्ट कैसे होगा? विस्तार करके होगा। और उसके पहले आप नष्ट करने गए तो आप दूसरी अति पे चले जाएंगे, द्वेष में। जैसे अपने को अपने घर के प्रति प्रेम, तो अब क्या सोचे कि मैंने खूब प्रेम, मेरे को उसको नष्ट कर देना, क्योंकि राग नहीं होना चाहिए। तो वो क्या करता है कि उनसे द्वेष करेगा। ये सही पद्धति नहीं है। फिर वो इसको छोड़ दो, मैं उसको देखूंगा नहीं, ये नहीं, और अति हो जाती है एक प्रकार। ये सही पद्धति नहीं है। सही पद्धति क्या है कि जैसे तुम्हारी माँ है ना, वैसे ही अब तुम सबको तुम्हारी माँ जैसा मानने लगो, कि दुनिया में दूसरी स्त्रियां हैं ना, वो भी हमारी माँ। ये हमारा भाई है तो दूसरे कोई वो अपरिचित है, वो भी हमारा भाई। ये हमारे पिता है तो कोई भी व्यक्ति हमारे पिता जैसा मिला तो वो भी हमारे पिता है। सबको एक जैसा लगने हो। उस घर से निकल करके थोड़े आपके मोहल्ले तक आओ, वैसा ही स्नेह सबके प्रति करो। फिर थोड़ा और उसको विस्तार करो, फिर उसका और विस्तार करो, फिर उसका और विस्तार करो। ऐसे करते करते समष्टि के प्रति विस्तार हो जाए। तो जैसे हमारी माँ हमको कुछ खोटा दो शब्द कहती तो हमको बुरा नहीं लगता है, वैसे कोई और भी हमारी माँ जैसी कोई स्त्री होगी, वो हमको कोई भी खोटा शब्द कहेगी, डांटेगी तो हमको बुरा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो हमारी माँ है। कोई व्यक्ति हमारे भाई जैसा है, इतने उम्र का है, और कोई हमको कह दे दो बात कड़वी तो हमको बुरी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा भाई है। परंतु वो फीलिंग नहीं होगी तो हमको बुरा लगेगा। इसलिए कोई अजनबी व्यक्ति अपने को कहता है तो हमको बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमको ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ऐसा नहीं लगता। उसके प्रति वो प्रेम हमारे नहीं है। और वो प्रेम सबके प्रति आ जाए। अब कोई बूढ़ा व्यक्ति आपको कुछ कह दे तो कोई बात नहीं, दादाजी हैं यार, कहते रहते हमारे दादाजी भी ऐसे ही कहते। कोई अपने जैसा हो, कोई कहते कोई बात नहीं यार, हमारा भाई होता तो भी करता ही नहीं। अथवा हमारा मित्र हो तो वो कुछ कह देता है, कोई बात नहीं। सब ये भाव पैदा हो जाते हैं। सब अपने लगते हैं, अपने नहीं तो कहा है, और कौन पराया है यहाँ पे? सब अपने, कोई पराया। और ऐसा व्यक्ति है ना, कहीं पर भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। उसको लगता ही नहीं है कि मैं अकेला हूं, क्योंकि जहां जाता है वहां सब अपने ही दिखते हैं। वो जंगल में जाएगा तो जंगल के प्राणी भी उसको अपने ही लगेंगे, क्योंकि अपरिचित थोड़ी, ये जीव है ना। सब देखो, वैश्विक प्रेम हो गया। और इसलिए अब केवली भगवान को देखो, इसका विस्तार है वो। इस चीज को हम समझेंगे तो केवल ज्ञानी को समझ सकते। हम जिससे प्रेम करते हैं उसको हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके गुण को भी स्वीकार करेंगे, उसके दोषों को भी स्वीकार करेंगे। पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? अब हम एक से प्रेम करते हैं तो एक को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। दो को प्रेम कर रहे हैं तो दो को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। हम अपने परिवार को प्रेम करते तो परिवार को पूरी तरह से स्वीकार करते, वो जैसे हैं वैसे। हम अपने समाज में तो समाज में पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, वो जैसे हैं वैसे में। उसके प्रति हमको किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं होगी, सब स्वीकार है। अब ऐसे विस्तार करते जाओ। और केवली भगवान क्या कर रहे हैं अभी? वही कर रहे हैं। वो जगत जैसा है वैसा वैसा स्वीकार है पूरी तरह से। आप उनको गाली दो, उनको गाली देने वाले होंगे कि नहीं? और उनके ज्ञान में आता होगा कि नहीं? पर स्वीकार है उनको, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। परस्पर विरोधी प्रवृत्ति करने वाले, अभी जैसे हम जिसको प्रेम करते हैं, हमारा भाई है, पहले अच्छा था, अब वो बिगड़ गया,
तो भी हमको स्वीकार है। ऐसे ही उनको उनकी भक्ति करने वाले भी स्वीकार है और उनकी निंदा करने वाले भी स्वीकार। क्यों? उनको प्रेम है। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। ये प्रेम होता है ना, उत्कृष्ट प्रेम, वो फिर ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। किसी के प्रति कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहती है। जो जैसा है वैसा स्वीकार है अपने, बस ये जैसा है वैसा स्वीकार भाव करना, ये वीतरागता है और ये ऐसे बढ़ेगी। और अगर हम द्वेष करके बढ़ाना चाहेंगे तो हम जगत में अकेले हो जाएंगे, शुष्क हो जाएंगे, रूखे सूखे हो जाएंगे। कोई नहीं आ तो संसार में कोई कोईનું નથી, ऐसा नहीं है, सब अपने। कैसे कोई कोई का नहीं है? पहले ये दृष्टि लाओ, सर्वात्मा समदृष्टि, जगत आत्मरूप। कितने सब हेल्प कर रहे हैं अपने, सब एक दूसरे के। हम दूसरे की हेल्प के बिना तो एक समय तक, एक समय के लिए नहीं रह सकते हम। बताओ, ये सारे पुद्गल हमको हेल्प कर रहे हैं कि नहीं? सारे जीव हमको हेल्प कर रहे हैं कि नहीं? परस्पर उपग्रह जीवाना, कहाँ कोई किसका नुकसान कर रहा है? बताओ, सब षट द्रव्य एक दूसरे को, इतना अच्छा सामंजस्य है उनका, सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं। आप जब चाहो तब काल तैयार है। अच्छा, आपको कैसा होना है? जैसा होना है वैसा काल कहेगा, मैं ऐसा आप हेल्प कर दूंगा। धर्मास्तिका कहेगा अच्छा आपको चलना है, आई एम रेडी। अधर्मास्तिका अच्छा आपको स्थिर रहना है, आई एम रेडी, मैं आपको स्थिर कर दूंगा। आकाश कहता है अच्छा आपको स्थान चाहिए, मैं रेडी, मैं हमेशा रेडी आपके लिए। पुद्गल भी हम जैसा होना चाहे वैसा हो सकता है। अच्छा आपको दुखी होना है तो आपके पाप कर्म के जो पुद्गल हैं वो रेडी, आपको दुखी कर देंगे। अच्छा आपको सुखी होना है तो आपको जो पुण्य कर्म के पुद्गल हैं वो रेडी है आपके लिए, वो आपको सुखी कर देंगे। और जब ऐसा कि भाई पुद्गलों को यूं कहेंगे अपन कि देखो अब है ना, मुझे सुखी दुखी नहीं होना, अब आप मेरे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, मैं शांत होना चाहता हूं, वो शांत होकर के बैठ जाएंगे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना। अब ये सब हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रही है? बता, कौन किसका बिगाड़ रहा है यहां पर? हम जब दुखी होना चाहते हैं तो जो भी दुखी होने में फैक्टर होते हैं वो सब मिल जाते हैं अपने। अनिष्ट सामग्रियां सारी अपनी हेल्प करती है। क्यों हेल्प करती है? कि हम दुखी होना चाहते हैं। कोई दुखी होना नहीं चाहे तो वो दुखी हो ही नहीं सकता। दुखी होना चाहते हैं इसलिए आप दुखी होते हैं, और उसमें वो हेल्प कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? जैसे कोई आत्महत्या करना चाहे तो उसको विष सुख हितकारी है कि अहितकारी है? क्या है? विष ने उसका हित किया कि हित किया? बताओ। जो आत्महत्या करना चाहे उसको विष ने हित किया कि हित किया? उसने उसका हित ही किया है, क्योंकि वो मरना चाहता है अभी और उसको मरने में हेल्प कर रहा है। और अगर विष मान लो थोड़ा सा भी इसकी क्वालिटी डाउन रही ना तो उसके ऊपर गुस्सा करेगा, अरे इसमें मारने की ताकत, मैं कितना पी गया, और इसका मतलब ये ओरिजिनल विष है ही नहीं, डुप्लीकेट है ये सारा। तो वो उसको दोष देगा, और जो विष उसको अच्छे से मार सकता है उसको हेल्प कर, बहुत अच्छा है, मैं अब तुरंत मर जाऊंगा। अब अच्छा किसने किसका बुरा किया ये बताओ? हम बहुत दृष्टि घुमा करके देखेंगे, इस जगत में हमारा सब ने उपकार ही किया है। मोक्ष पर्यंत सब उपकार करते हैं, कोई वैराग्य में का। अच्छा, वैराग्य के कारण कौन बनते हैं? अपन कहते हैं ना कि अपने परिवार वाले लोग होते हैं ना, वो तो हम सबको बांधते हैं। ऐसा नहीं है, सबसे अधिक वैराग्य के कारणभूत वही होते हैं। दूसरा कोई अपने को धोखा दे देना तो हमको वैराग्य नहीं आएगा, पर हमारा चाहने वाला, हमारी पत्नी, हमारा बेटा, ये हमारे साथ कुछ धोखाधड़ी कर देंगे ना, दुनिया में कोई किसी का नहीं, और हमको वैराग्य आएगा। कहाँ, किसने दिया? इसी ने दिया। सब हमको उसी से प्राप्त होगा, इसलिए उसका धन्यवाद ही है वो।
पर हमारी दृष्टियां गलत है, इसलिए हम उसके ऊपर दोष देते रहते हैं, जबकि उसने हेल्प किया। हर व्यक्ति हमको आगे बढ़ा रहा है, हर वस्तु अपने को आगे बढ़ा रही है, परंतु निमित्त पर दृष्टि दोष दृष्टि अपनी हो गई है। ये प्रेम। फिर देखो सबके ऊपर प्रेम आता है। जब व्यक्ति जब दीक्षा लेता है ना, संयम ग्रहण करता है, तो कैसी दृष्टि होती है, उसको इस जगत का कोई भी वस्तु अथवा व्यक्ति, जड़ चेतन, कोई इष्ट अनिष्ट लगता ही नहीं। वो कहीं किसी से भाग नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस उसको अब किसी की आवश्यकता नहीं लगती। तो सबको वो धन्यवाद देता है। अच्छा, परिवार वालों को कोसता है कि तुमने मेरे को बांध के रखा है, इसलिए मैं आज तक तुम्हारे अंदर, अब मैं तुमको छोड़ के चला जाऊंगा, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं है। धन्यवाद, आपने मुझे आज तक जो भी स्नेह प्रेम दिया, क्योंकि जब तक मैं घर में था तब तक मुझे वो चाहिए था, और मुझे जो चाहिए था वो आपने दिया। तो उपकार है कि अपकार है, बताओ? उपकार ही है, क्योंकि हमको उस भूमिका में वो चाहिए, तो आपने वो सुखी किया। देखो, ऐसे मैंने एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी थी, किसी कोई सती थी या स्त्री की उदात्तता देखो, कि उसने जिस दिन विवाह किया, उस दिन उनको कहा कि आप जिस प्रकार से मुझसे जो चाहोगे वे उस रूप हो जाओगे। अगर आप मेरे से लौकिक सुख की इच्छा करोगे तो मैं आपको सारा संसार का सुख दूंगी। एक स्त्री एक पुरुष को जितने प्रकार से सुखी कर सकती है, अपने शरीर से, अपनी सेवा से, अपने उतने प्रकार का सुख मैं आपको दूंगी। और जिस दिन आपको ऐसा लगे कि मुझसे आपको दूर रह करके सुख मिलेगा, और उस दिन मैं आपके जीवन से चले जाऊं, मैं आपसे दूर हो जाऊं, हर कंडीशन में मैं आपका सुख चाहती हूं। और उसने जब तक उसको संसार का सुख चाहिए था, पूरा का पूरा सांसारिक सुख दिया। और जिस दिन उसको वैराग आ गया, प्रेम से उसको विदा कर दिया कि अब शायद मेरे से दूर रह करके आप सुखी रहिए। पहले आपको इस प्रकार से मेरी निकटता की जरूरत थी, तो हमने आपको निकटता दी, सहवास दिया। अब आपको हमारी निकटता से अब आप दुखी होंगे, क्योंकि अब आपकी वृत्ति बदल गई। पहले आपको इंद्रिय सुख चाहिए था, हमने वो दिया। अब आपको इंद्रिय सुख नहीं चाहिए, और वो मेरे पास रहोगे तो आपको इंद्रिय सुख में वृत्ति जाएगी। अब आप शायद मेरे से दूर होकर के ही सुखी रह सकते हो, अब हम आपसे दूर हो जाएंगे। तो दोनों में वो उसकी हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही? दोनों प्रकार से हेल्प। इसको त्याग कहते हैं। ऐसा जो कर देता है ना दुनिया में, ऐसे ही लोग मोक्ष के अधिकारी होते हैं, जो दूसरों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। आपको मेरे से जो चाहिए उस रूप में मैं आपके सामने आकर के खड़ा हूं, मैं वो रूप धारण कर रहा हूं आपका। ऐसा प्रेम अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम इस मोक्ष के अधिकारी नहीं। हम तो किसी से भी वास्तव में सच्चा प्रेम करते ही नहीं, हम तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। सच्चा प्रेम उसका नाम है कि सामने वाला जैसा चाहे वैसे हो जाओ, अपनी कोई इच्छा नहीं जरा भी। आप कैसा चाहते हो बस वैसा। ऐसी ये प्रेम है। ऐसे करेंगे तो हम गुरु के सामने भी समर्पित हो पाएंगे कि आप जैसा चाहोगे हम वैसा बनेंगे। कोई घर में किसी को प्रेम कर सकता है, पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित हो सकते हैं, तो वही पति पत्नी देवशास्त्र गुरु को समर्पित हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो त्याग शक्ति है कि वो एक दूसरे के लिए अपनी खुशी को त्याग सकते हैं, अपनी रुचि को त्याग सकते हैं, अपनी वृत्ति को त्याग सकते हैं। तुम जिसमें खुश हो उसमें हम खुश हैं। हमारी कोई अपनी खुशी
नहीं। तो देखो, फिर जब वो देवशास्त्र गुरु के, फिर आप जिसमें खुश रहेंगे उसमें, और देवशास्त्र गुरु तो इसी में खुश हैं कि हमारा कल्याण हो, हम वितराग हो जाएं तो हम वितराग हो जाएंगे। ये संसार से ही सीखने मिलता है अपने को। और जो संसार में प्रेम नहीं कर सकता है ना, वो क्या आध्यात्मिक प्रेम करेगा? कुछ नहीं। उसके तो अभी ABCD भी चालू ही नहीं है। जिसको जगत के जीवों के प्रति प्रेम स्नेह नहीं है, जो रूखे सूखे लोग होते हैं ना, उनके लिए मोक्ष मार्ग है ही नहीं। यहाँ तो भीगा हुआ हृदय चाहिए। इसलिए जो महात्मा पुरुष होते हैं, उनके गृहस्थावस्था का जीवन देखो, एक दूसरे के प्रति मर मिटे ऐसा प्रेम होता है, क्योंकि वो उन्होंने उतना हृदय को विकसित किया है, कोमल बनाया है, भीगा हुआ बनाया। उस कोमल हृदय में ही ज्ञान और वैराग्य उपज सकते हैं, क्योंकि उसमें त्याग है, बलिदान है। प्रेम होता है वो त्याग और बलिदान सिखा सकता है। ऐसा प्रेम उपादेश है। अभी समझा नहीं? इसको वात्सल्य कहते हैं। इसका नाम क्या है? वात्सल्य। बाकी अपने स्वार्थ की सिद्धि करना, ये कोई प्रेम नहीं। पूज्य साहब जी वो दृष्टांत देते थे धोती सुखाने का, प्रेम हाँ, कितना बढ़ता है। धोती सुखाओ, अभी सुखाएगा जल्दी पानी निकल जाएगा उसमें। ऐसे अपने राग को विस्तार कर दोगे सबके प्रति। कठिन है, परंतु पहले के ना एक टेस्ट करके देखो, एक के प्रति इतना एक टेस्ट करके देखना कि पहले एक के प्रति मैं एक का पूरा हो जाऊं, तब आप सारे संसार के पूरे हो सकते। पर एक के प्रति भी हम अभी अपने आप को बचा बचा के रखे हुए, एक के प्रति भी हम पूरे समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। पत्नी पति के प्रति पूरी समर्पित नहीं हो पा रही है। अगर उसकी मान्यताओं के विपरीत, उसकी इच्छा के विपरीत, उसके अहंकार के विपरीत कुछ भी हो गया, स्वीकार नहीं करेगी। पति पत्नी को स्वीकार नहीं करेगा। उसका ईगो, मैं जैसा चाहता हूं, उसकी मान्यता, उसका ईगो। तो एक दूसरे को समर्पित होना तो अपने अहंकार, अपनी इच्छा, अपनी मान्यताएं सब छोड़ दिया जाए। अब हम उनके लिए जी। ऐसे स्त्री पर्याय में करते कि नहीं करते? कि अपने पिता के घर में किसी भी धर्म का पालन करते, पर यहां आ गए तो वो छोड़ देते सारा का सारा। अब हमको इनके अनुसार होकर के रहना है और सारा एडजस्ट कर लेते। ये एक बहुत बड़ा गुण कहलाता है। और जो एडजस्ट नहीं कर पाते, उनका गृहस्थ जीवन कोई अच्छा होता नहीं। अपनी मन ऐसे बहुत अच्छी चीजें हम समाज से ही अगर शिक्षा लेना तो बहुत गुण अपन डेवलप कर सकते हैं। इन रिश्तों से, इन संबंधों से अगर हम शिक्षा लें तो हम अपने आत्मा को बहुत विकसित कर सकते हैं। इन सब से शिक्षा लेना। इसलिए भारतीय संस्कृति सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानम, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज, ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओम। जय सुख।